Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Today's topic is modals, or we can say modal auxiliaries or modal verbs as well. Yesterday we discussed just auxiliary verbs, and in auxiliary we just discussed primary auxiliaries. So there is left second part of this auxiliary verbs, that is called as modal auxiliary. So we are going to discuss modals or modal auxiliaries today. Now come to the definition first. Those verbs which are used before other verbs to talk about ability, permission, obligation and necessity, obligation and advice, possibility, probability, request, offer, suggestion, habit and promise. Most modal verbs can form questions and negative sentences themselves. So dear students, what is the definition? The real usage of modals or modal auxiliaries is that they come before a certain verb in order to give certain meanings or special meanings. So they come in a sentence before main verb in order to give certain or specific meanings to a verb. For example, they talk about these all modal verbs talk about, so sometimes they talk about ability, sometimes they talk about permission, sometimes they talk about obligation and necessity, and the other meaning is obligation and advice. Sometimes they give you the meaning obligation, the meaning of obligation and necessity, and sometimes they give you the meanings of obligation and advice, and sometimes you incur meaning from them of possibility. Sometimes they will give you the meaning of probability, and sometimes of request, and sometimes of offer, suggestion, or habit and promise. So all these words, they come as meanings of these modal auxiliaries in sentences. First of all, we discuss all these meanings that they come out of these auxiliaries, and they are given as below, like ability, permission, obligation, necessity, obligation, advice, and so on. First of all, the meaning of ability, you can achieve this meaning from which modal words: can, could, be able to. So these three modals or modal auxiliaries, they will give you the meaning of ability. So they possess the meaning of ability in them. For example, can, this show ability in present; could, this show ability in past; and be able to, this show ability in both present as well as in past. So all of these three modal verbs give you the meaning of ability. Can, so I can swim, so it means I have the ability to swim. The meaning of this sentence is I have the ability of swim, or I possess the ability to swim. So could you go there please? Could you go there please? So could, it means do you have the ability to go there? The meaning is, do you have the ability to go there please? If you have the ability, then you may go now, or you may go there. So this can or could or be able to. So I am able to drive, and I have the ability to drive, I know how to drive. So this be able to, this be is actually the auxiliary verb. It shows, I told you in last class that this is used, this is a base verb. This is used for many auxiliary verbs like is, am, are, was, were. So this is actually is able to, or are able to, or am able to. So this can be used as like this: is able to, am able to, are able to, was able to, were able to. Now the example of this will be like, I'm able to drive, or he is able to drive, she is able to drive, you are able to drive. It means I have the ability to drive, or you have the ability to drive, or she has the ability to drive, or he has the ability to drive. So these three show the ability actually. The second one is permission. So from which modal words you can receive the meanings, or you can get the meanings of permission. So all these can, could, may, might, all these four can give you the meaning of permission. So whenever you use these four modal auxiliaries, it means that you are using these four in order to get the meaning of permission in a specific or in a certain sentence. They are used to talk about permission. So can I use your pen? So what is this? Now you are using this with question form. Can I use your pen? It means, do you have the permission? Do you have the permission, or are you permitting me to take your pen?
Are you giving me permission to take your pen, to use your pen? So can here is used for permission. So do you have the permission for me to take your pen or to use your pen? Or are you going to permit me, for example, are you going to permit me to use your pen? So this can is actually giving you the meaning of permission. Could as well is giving me the giving the meaning of permission. Could I ask you a question? कि मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? So look, it means if you permit him to ask a question, so you can use could with this in a sentence like this. Could I ask you a question? Could you pass me salt please? क्या आप मुझे सॉल्ट दे सकते हैं, पास कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, दे सकते हैं? सो ये परमिशन के लिए आता है. सो कैन से हम परमिशन मांग सकते हैं, ठीक है, इजाज़त मांग सकते हैं. ऑब्लिगेशन नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन किसे कहते हैं? जिम्मेदारी को, नेसेसिटी ज़रूरत को. तो एक चीज़ फ़र्ज़ भी है, ज़रूरी भी है, और साथ साथ उसकी ज़रूरत भी महसूस की जाती है. तो ऑब्लिगेशन इस किस्म की कि वो ज़रूरी हो, जैसे मस्ट, हैव टू और हैव गॉट टू, ये तीन मॉडल्स हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं. यूज़ फॉर द एक्टिविटीज़, ऐसे एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल होता है. दैट आर ऑब्लिगेटरी टू डू, जिसका करना बहुत ज़रूरी होता है, और नेसेसरी टू परफॉर्म, या उसका अदा करना इंतहाई अहम होता है. उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? मस्ट इस्तेमाल करते हैं. जैसे हम कहते हैं यू मस्ट गो देयर. शुड आई गो देयर, आप सवाल पूछते हैं फॉर एग्जाम्पल किसी से, शुड आई गो देयर, क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए? तो उस जवाब में आपको ये आता है कि नो यू मस्ट गो देयर, नॉट शुड, बल्कि यू मस्ट गो देयर. तो शुड से ज़्यादा इंक्रीज़ है, ज़्यादा नेसेसिटी को और ऑब्लिगेशन को बता रहा है. यू मस्ट स्टॉप राइट नाउ हियर, यू मस्ट स्टॉप राइट नाउ हियर. सो आप बिल्कुल बस यहीं ठहर जाएँ, यहीं ठहर जाएँ, एक कदम आगे ना बढ़ें, ठीक है. सो इस तरह ये मस्ट इस्तेमाल होता है. हैव टू, आई हैव टू गो नाउ, इट्स मस्ट, मुझे भाई जाना है, ज़रूर जाना है. सो या आई हैव गॉट टू, यू हैव गॉट टू लिसन टू मी, आपको मुझे सुनना पड़ेगा. लाइक इस तरह से एग्जांपल इस्तेमाल होती हैं, हो सकती हैं, होती हैं. ऑब्लिगेशन एडवाइस, ऑब्लिगेशन एडवाइस के लिए भी इस्तेमाल होता है. ऐसी ज़रूरत जो हो तो ज़रूरत, लेकिन एक सख्त अल्फाज में ना हो, सख्त तौर से ना हो, बल्कि एक नसीहत मंदाना अंदाज के अंदर वो फ़र्ज़, वो ज़िम्मेदारी बतलाई जाए. तो वो शुड के साथ या ऑट टू के साथ, हैड बेटर के साथ या शेल के साथ हम डिस्क्राइब करते हैं. तो एक ऐसी ज़िम्मेदारी, एक ऐसा फ़र्ज़ बतलाना, एक ऐसे बोझ का बतलाना जो कि ज़रूरत के तहत ना हो, बल्कि एक नसीहत के तहत हो. तो एक चीज़ ज़रूरी भी है लेकिन नसीहत के अंदाज़ में है, तो नसीहत के अंदाज़ में हम शुड को इस्तेमाल करते हैं. यू शुड नॉट डू दिस अगेन, आपको ऐसे काम नहीं करना चाहिए दोबारा, ठीक है. या यू ऑट टू डू, सो यू ऑट टू बी देयर ऑन टाइम, आपको वहाँ पर वक्त पर होना चाहिए. सो ऑट टू रिस्पेक्ट वर्ड है, रिस्पेक्ट के लिए हमेशा इस्तेमाल होता है. अपने से बड़े के लिए आप शुड नहीं इस्तेमाल करते, ऑट टू इस्तेमाल करते हैं उमूमन. और शुड अपने या अपने जैसे या अपने से नीचे लोगों के लिए आप शुड इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन कोई बड़ा है या ओहदे के लिहाज से आपसे बड़ा है, एज के लिहाज से बड़ा है, या उसकी ताज़ीम करना चाहते हैं, उसको तक़दीस करना चाहते हैं, एहतराम करना चाहते हैं, तो ऑट टू इस्तेमाल करते हैं. अपने टीचर्स, अपने वालिदैन, अपने बड़े भाइयों, दोस्तों, या कोई भी जो ओहदे में आपसे बड़ा हो, उसके लिए फिर आप इज़्ज़त के लिए ऑट टू इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर उमूमन. हैड बेटर, ये बतौर एक सजेशन है. वी हैड बेटर लीव दिस टॉपिक नाउ, मुनासिब होगा कि हम इस टॉपिक को अभी छोड़ दें. तो हम इस तरह इस्तेमाल करते हैं. या अगर आप बहुत देर हो चुकी है, आप इस्तेमाल करते हैं फॉर एग्जांपल यू हैड बेटर लीव नाउ, या यू हैड बेटर लीव दिस रूम नाउ. आप ये कमरा, आपको मुनासिब ये है कि कमरा आप छोड़ दें या ये जगह खाली कर दें. समझ आ रही? यू हैड बेटर लीव दिस प्लेस नाउ, या यू हैड बेटर लीव दिस टॉपिक नाउ. समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो चाहिए कि मुनासिब ये है कि आप इस टॉपिक को छोड़ दें. हम इस तरह इस्तेमाल करते हैं. एंड शेल को भी इस्तेमाल करते हैं. आई शेल सी यू सून, मुझे आपको जल्दी मिलना चाहिए. समझ आ रही है? तो शेल शुड के माना में आ जाता है इस तरह. आई शेल सी यू टुमारो, मुझे आपको कल सुनना चाहिए या आप कल देखना चाहिए. अब देखो सारा तीनों इस्तेमाल इसके लिखे गए हैं. शुड एंड ऑट टू, यूज टू टॉक अबाउट द ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटी, ठीक है. ऑब्लिगेशन और ड्यूटी के मुतालिक के लिए इस्तेमाल होता है. टू आस्क फॉर एंड गिव एडवाइस इन जनरल, उमूमी एतबार से जब आप किसी को एडवाइस करते हैं या किसी चीज़ का कहते हैं तो आप इसको शुड और ऑट टू में बयान करते हैं. टू से व्हाट इज़ राइट और गुड, जो चीज़ अच्छी है या बुरी है, सही है. यू ऑट टू लर्न टू स्विम, आपको सीखना चाहिए क्या चीज़? नहाना. आपको नहाना सीखना चाहिए. तो दिस गुड हैबिट, राइट थिंग टू डू. सो यू आर यूजिंग ought to do in a sentence, ought to in a sentence. I shouldn't tell a lie, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए. So you are advising yourself not to tell a lie. Had better, used to express a strong and recommended action in a particular situation. एक ख़ास सिचुएशन के अंदर हम इस had better को इस्तेमाल करते हैं जो हाईली रिकमेंडेड है, एक स्ट्रॉन्ग
क्या है एक्सप्रेशन है। और वेयर समवन फील समथिंग बैड मे हैपन एज अ रिजल्ट ऑफ बैड सिचुएशन, या उस वक्त आप इस्तेमाल करते हैं इसको कि हो सकता है कि कुछ गलत होने जा रहा है, कुछ गलत हो सकता है, और उस गलत चीज़ को अवॉइड करने के लिए कि वो अवॉइड हो जाए आप हैड बेटर इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम दो टॉपिक में लगे हुए हैं, झगड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो कोई उसमें से कहते हैं यार वी हैड बेटर लीव दिस टॉपिक, वी हैड बेटर लीव दिस टॉपिक। इस्तेमाल कैसे करते हैं, वी हैड बेटर और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म और बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, ठीक है, इसके बाद कोई और नहीं आती। लेकिन ये एक क्या है स्ट्रक्चर है, जो पूरा स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है हैड बेटर। ये पूरा आप कहेंगे हैज़ और हैव इसमें नहीं आता, ये हैड बेटर इस्तेमाल होता है HAD के साथ हैड बेटर, और उसके बाद फ़ौरन जो वर्ब आता है मेन वर्ब वो बेस वर्ब के साथ आता है, फर्स्ट वर्ब के साथ आता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आता है। सो वी हैड बेटर लीव दिस टॉपिक नाउ, अच्छा होगा हम ये टॉपिक छोड़ दें, इसका मतलब ये होगा, सी है, वी हैड बेटर लीव द क्लास, हमें क्लास छोड़ देनी चाहिए, ये बेहतर होगा, ये मुनासिब होगा कि हम क्लास छोड़ दें। अच्छा, यू हैड बेटर नॉट टू कम टू माई रूम आफ्टर दिस, समझ आ रही है, या एनी मोर, बेहतर होगा कि आज के बाद मेरे कमरे में आप ना आएँ, या मुनासिब होगा कि आज के बाद मेरे कमरे में ना आएँ। तो हम इस तरह इसको इस्तेमाल करते हैं, इसका यूजेज ऐसे ही है। इट्स गोइंग टू बी कोल्ड टुनाइट, आज सर्दी होने वाली है, सो आई हैड बेटर टर्न ऑन द हीटिंग, सो मुझे हीटर लगा लेना चाहिए। आई थिंक द डिस्कशन इज़ गोइंग टू बी वर्स्ट, मेरा ख्याल है कि बहस जो है बुरी तरफ जा रही है, गलत तरफ जा रही है। सो वी हैड बेटर लीव नाउ, तो हमें बेहतर होगा कि हम इस डिस्कशन को छोड़ दें। देखो वी हैड बेटर, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म द वर्ब, वी हैड बेटर, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तीसरा है शेल, यूज्ड व्हेन वी वांट टू नो समवन्स ओपिनियंस और व्हेन वी वांट एडवाइस और इंस्ट्रक्शन। हम उसका इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी की आरा को लेते हैं, किसी की आरा, किसी की ओपिनियन, किसी का ख्याल हम लेते हैं, तो उस वक्त हम शेल इस्तेमाल करते हैं। और व्हेन वी वांट एडवाइस और इंस्ट्रक्शन, या हमें किसी इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है या किसी एडवाइस की ज़रूरत होती है, तो हम शेल इस्तेमाल करते हैं। देखो लाइक फॉर एग्जांपल, आई हैव मिस्ड माई लास्ट बस, मैंने तो अपनी लास्ट बस मिस कर दी है, व्हाट शैल आई डू, मुझे क्या करना चाहिए। तो इसका मतलब आप कोई चीज़ पूछ रहे हैं, कुछ मशवरा मांग रहे हैं, कोई इंस्ट्रक्शन मांग रहे हैं कि मुझे क्या हिदायत लेनी चाहिए, किन हिदायत पर अमल करना चाहिए। तो आपने देखो आई हैव मिस माई लास्ट बस मैंने मिस कर दी है, सो व्हाट शैल आई डू, मुझे क्या करना चाहिए, ज़रा बताएं आप, कोई पता है आपको। फॉर एग्जाम्पल, हाउ लॉन्ग शैल आई कुक दिस राइस, राइस पक नहीं रहे, फॉर एग्जाम्पल हैं, आप तक गए, राइस पक नहीं रहे, तो आप इस्तेमाल करते हैं हाउ लॉन्ग शैल आई कुक दिस राइस, यार कितनी देर तक मैं ऐसे पकाऊंगा, ये तो पक ही नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब है आप एक एडवाइस चाह रहे हैं, नसीहत चाह रहे हैं, मशवरा चाह रहे हैं कि मुझे कोई मशवरा दे कि ताकि ये पक जाए। तो इस तरीके से शेल को भी इस्तेमाल किया जाता है। पॉसिबिलिटी, पाँचवा है नंबर है मॉडल ऑक्सिलरी, कि उससे आप पॉसिबिलिटी वो करते हैं, जो मीनिंग एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो कौन से वो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं जहाँ से आप पॉसिबिलिटी की मीनिंग एक्सट्रैक्ट करते हैं, लेते हैं, अखज़ करते हैं। सो वी यूज़ मे और माइट एंड कुड टू टॉक अबाउट प्रेजेंट और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़। मे, माइट या कुड हम इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर या प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी की, जो चीज़ हाल में मुमकिन है या फ्यूचर में होने जा रही है, फ्यूचर में उसका इम्कान है, तो वो इम्कान जो हाल में देखते हैं, वो इम्कान जो फ्यूचर में देखते हैं, उसके लिए आप पॉसिबिलिटी में माइट या कुड से हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, देयर इज समवन एट द डोर, दरवाजे पे कोई है, इट मे बी अली हो सकता है, हम कहते हैं ना अली हो सकता है, यार देखो दरवाजे पे कोई है, शायद अली हो, ऐसा भी तर्जुमा करते हैं, यार दरवाजे पे देखो हो सकता है अली हो, है, या अली हो सकता है, इस तरह हम तर्जुमा करते हैं। तो हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी का इजहार करते हैं। वी आर श्योर अबाउट व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुमारो, हमें कुछ पता नहीं हम क्या करने जा रहे हैं कल। वी माइट गो टू द बीच, हम शायद बीच चले जाएं। देखो यहाँ पे आप चले जाएं आपने तर्जुमा किया, शायद हम बीच जाएं, शायद हम बीच जाएं, साहिल समंदर जाएं। तो देखो ये शायद, ये पॉसिबिलिटी इम्कान को ज़ाहिर कर रहा है, तर्जुमे से भी पता चलता है। एफ, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी भी इम्कान है, इम्कान को ज़ाहिर करता है, मुमकिन है कोई चीज़, किसी चीज़ का होना मुमकिन है। सो ये एक किसी चीज़ के होने के बारे में, इम्कान के बारे में, कोई चीज़ हो सकती है, अभी नहीं हुई लेकिन हो सकती है कि हो जाए। वी यूज़ शुड एंड ऑट टू, देखो वही दोबारा शुड और ऑट टू जो हमने यहाँ पे ऑब्लिगेशन और एडवाइस के लिए इस्तेमाल किया था, तो दोनों दूसरी जगह भी आ सकता है, यानी ये शुड ऑब्लिगेशन और एडवाइस के लिए इस्तेमाल हो सकता है, तो ये शुड और ऑट टू प्रोबेबिलिटी के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। to say that something is probable at the moment of speaking or in the future, कि जिस वक्त मैं कह रहा हूँ या फ्यूचर के अंदर, जिस वक्त मैं अल्फाज अदा कर रहा हूँ, इस वक्त या फ्यूचर के अंदर, आइंदा के अंदर एक चीज़ हो सकती है, इम्कान की हद तक किसी चीज़ का वकूफ़ पज़ीर होना, ये प्रोबेबिलिटी है। इम्कान की हद तक
किसी चीज़ का वाक़ हो जाना, किसी चीज़ का हो जाना, वक़ूफ़ पज़ीर होना इम्कान की हद तक कि मुमकिन है कि ये चीज़ वाक़ हो जाए, ऐन मुमकिन है कि ऐसा हो जाए, तो वो प्रोबेबिलिटी की ज़ुमरे में आती है। तो ये हाल के अंदर भी हो सकता है और फ्यूचर के साथ भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अहमद शुड बी एट वर्क बाय नाउ। अहमद को अभी काम पे होना चाहिए है, या अहमद को अभी काम पे होना चाहिए था। ही इज़ नॉर्मली देयर एट दिस टाइम। देखो ये प्रोबेबिलिटी है, समझ आ रही कि नहीं? वो तो आमतौर पर इस वक्त काम पे होता है, यानी आमतौर पर वो इस वक्त मौजूद होता है, तो उसे तो होना चाहिए काम पे, लेकिन वो क्यों नहीं आया? यानी प्रोबेबिलिटी ये है कि जिस वक्त मैं जुमला कहने जा रहा हूँ, जिस वक्त मैं बोल रहा हूँ, तो ये वो वक्त है कि ये काम होना चाहिए, यानी उसका वजूद, उसका पाया जाना होना चाहिए कि अली यहाँ पे मौजूद हो, अहमद यहाँ पे मौजूद हो, लेकिन नहीं है। तो लिहाजा मैंने इस वजह से कहा कि यार इस वक्त तो होना चाहिए कि वो हो, क्योंकि ये उसका टाइम है, क्योंकि ये उसका टाइम है। सो इम्कान की हद तक किसी चीज़ का वजूद कि ये वक्त मुमकिन है कि वो मौजूद होता, इस वजह से मैंने ये कहा, इस्तेमाल किया, शुड को इस्तेमाल किया कि अहमद शुड बी एट वर्क, अहमद को काम पे होना चाहिए। लेकिन हम इसका तर्जुमा इस तरह करते हैं उर्दू में कि अहमद को यहाँ अभी काम पे होना चाहिए या होना चाहिए था, क्योंकि उमूमन ये इस वक्त काम पे होता है। या शी ऑट टू पास हर ड्राइविंग, उसे अपना इम्तिहान पास करना चाहिए था, क्योंकि उसे तो ड्राइविंग आती है। समझ आ रही है? क्योंकि वो ड्राइविंग प्रोबेबिलिटी है, इम्कान की हद तक है, लिहाजा वो ड्राइविंग टेस्ट फेल कर गई है, तो आप यूँ बोलते हैं कि शी ऑट टू पास, उसे तो पास करना चाहिए था, या उसे तो पास करना चाहिए ड्राइविंग टेस्ट। क्यों? यानी उसे ड्राइविंग आती है। सो ड्राइविंग जो कि प्रोबेबिलिटी के अंदर है, इसलिए पास करना भी उसने इम्कान की हद तक लगा दिया, प्रोबेबिलिटी के अंदर लगा दिया कि ड्राइविंग पास करना भी, ड्राइविंग टेस्ट पास करना भी चाहिए कि वो पास कर ले, क्योंकि उसे ड्राइविंग आती है। शी हैज़न्ट गॉट मच टू डू, हाँ यानी ड्राइविंग इजली, उसे आसानी से ड्राइविंग पास करना चाहिए। क्यों? शी हैज़न्ट गॉट मच टू, उसे तो बहुत कुछ नहीं करना। जब उसे बहुत कुछ नहीं करना तो इस पर फिर तो ये है कि वो पास कर ले। क्यों? कि उसमें और चीज़ों की ज़रूरत उसे नहीं करनी पड़ेगी, उसे ड्राइविंग पहले से आती है। तो ये है मुमकिन है, इम्कान ये है कि वो ड्राइविंग टेस्ट पास कर ले। मैं क्यों कह रहा हूँ इम्कान है? कि बहुत ज़्यादा मुमकिन है, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो ड्राइविंग की होती हैं वो तो पहले से उसको आती हैं या कर चुकी हैं। इसलिए जुमला जिस वक्त मैं कह रहा हूँ तो उसी वक्त या थोड़ा सा करीब फ्यूचर में बहुत इम्कान है कि जो मैं कह रहा हूँ वो हो जाए, यानी ड्राइविंग टेस्ट पास करना ये हो जाए। तो इस वजह से मैं ऑट टू इस्तेमाल करता हूँ। आगे जाएँ जी, 7वां नंबर है रिक्वेस्ट का। अब ये रिक्वेस्ट जी मीनिंग कहाँ से हासिल हो सकते हैं? वी यूज़ कैन, कुड, मे, विल एंड वुड टू आस्क फॉर समथिंग, टू आस्क फॉर परमिशन और टू आस्क समवन टू डू समथिंग। ये हम सब इस्तेमाल करते हैं पाँचों को पाँचों, किस चीज़ की पूछने के बारे में, टू आस्क फॉर समथिंग, टू आस्क फॉर परमिशन, इजाज़त के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं, और या किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? तीसरा इसका इस्तेमाल है टू आस्क समवन, किसी से पूछना, टू डू समथिंग, किसी काम करने के लिए कि मैं कोई काम कर सकता हूँ या नहीं, ये चीज़ पूछने के लिए भी आप ये क्या कर सकते हैं? रिक्वेस्ट के तौर पर आप इन पांचों को इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैन आई आस्क यू अ पेन, क्या मैं आपसे पेन मांग सकता हूँ? सो ये क्या है? एक क्वेश्चन है ना, किस चीज़ से मांगना, टू आस्क फॉर समथिंग। कुड आई आस्क यू सम क्वेश्चंस, मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ। सो कुड यू आस्क यू सम क्वेश्चन, क्या मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? तो देखो कुछ इस्तेमाल करते हैं। मे आई हैव सम मोर कॉफ़ी, आप प्लीज़ भी लगा सकते हैं। मे आई हैव सम मोर कॉफ़ी प्लीज़, क्या मुझे और कॉफ़ी मिल सकती है? अज़राए करम, प्लीज़ मेहरबानी कीजिए, मुझे कुछ कॉफ़ी और मिल सकती है, कुछ कॉफ़ी और मिल जाएगी। सो मैं आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आप कहते हैं मैं आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? मैं आई गो टू वॉशरूम सर, मैं आई ईट समथिंग है, मैं आई रिसीव माई कॉल सर। सो ये आप मैं से करते हैं, तो मैं से भी आप क्या कर सकते हैं? एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं, एक क्वेश्चन कर सकते हैं जिसमें रिक्वेस्ट हो। ऑफर, वी यूज विल, वुड, शैल, could and can when we are willing to do something for someone। हाँ, हम इन सब को इस्तेमाल कर सकते हैं, will, would, shall, could, can को भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम क्या चाह रहे होते हैं कि कोई काम किसी के लिए करें। जब हम किसी और के लिए कोई काम करना चाहते हैं, उसे हम पेशकश करते हैं किसी काम की करने की, तो उसके लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं ऑफ़र। ज़ाहिर बात है पेशकश कहते हैं, जब आप किसी को पेशकश करते हैं अपनी खिदमत की, अपने काम करने की। आई लैंड यू सम मनी, मैं आपको कुछ पैसे दे दूँगा। तो देखो विल इस्तेमाल हुआ, ऑफ़र कर रहे हैं, पैसों की ऑफ़र कर रहे हैं देने के लिए। वुड यू लाइक मी टू हेल्प यू, क्या आप मेरी मदद करेंगे, क्या आप मेरी मदद करना चाहेंगे? देखो वुड इस्तेमाल हुआ। शैल आई ओपन द डोर फॉर यू, क्या मैं आपके लिए दरवाज़ा खोल सकता हूँ, या कि मैं आपके लिए दरवाज़ा खोल लूँ? तो देखो विल इस्तेमाल हुआ, शैल इस्तेमाल हुआ। आई कुड हेल्प यू टू लिफ्ट द बॉक्स, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ लिफ्ट बॉक्स को उठाने में, या क्या मैं आपकी मदद करूँ बॉक्स को उठाने में?
आई कैन राइट दिस लेटर फॉर यू, मैं आपके लिए ख़त लिख सकता हूँ. सो कैन ऑफर है, से मैं लिख सकता हूँ, यानी आप छोड़ें मैं लिख सकता हूँ, या आप बॉक्स छोड़ें मैं आपके लिए उठा देता हूँ. तो एक ऑफ़र है. ऑफ़र के लिए भी आप ये विल, वुड, कैन, ये कुड, ये शैल सब इस्तेमाल कर सकते हैं. सजेशन, ये सजेशन नहीं पढ़ा जाता, इसको पढ़ा जाता है सजेशन. शैल, कैन, कुड आर यूज्ड टू आस्क फॉर एंड मेड और एंड मेक सजेशन. शैल, कैन, कुड ये सब इस्तेमाल हो सकते हैं किसके लिए? सजेशन मांगने के लिए या देने के लिए. आप कोई राय मांग रहे हैं और या आप कोई राय दे रहे हैं. समझ आ रही कि नहीं आ रही? सो आपकी क्या राय है, आपका मशवरा क्या है? आप किसी को मशवरा देते हैं या आप किसी मशवरा लेते हैं? सो राय या मशवरा लेने में या राय मशवरा देने में, दोनों में ये सजेशन के लिए ये शैल, कैन, कुड इस्तेमाल हो सकता है. फॉर एग्जांपल, शैल वी स्टे एट होम, क्या हमें आज रुकना चाहिए? ये है. ये क्या मतलब है? आप किसी से मशवरा ले रहे हैं और आपको मशवरा देगा, आपने बात की, तो आप क्या कह सकते हैं? शैल वी स्टे एट होम, क्या हमें आज रुकना चाहिए? या शैल वी स्टे एट होम टुडे, क्या आज हमें रुकना चाहिए? यानी मुनासिब होगा, अच्छा होगा या नहीं? आपका क्या ख्याल है? तो इस वजह से हम शैल इस्तेमाल कर सकते हैं. वी कैन वॉच टीवी इफ़ यू लाइक, हम टीवी देख सकते हैं अगर आप चाहें तो. अगर आप चाहें तो हम टीवी देख सकते हैं. यानी आपको क्या ख्याल है, आप टीवी देखें या ना देखें या कुछ और करें? तो ये आप कैन इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी और से सजेशन मांग रहे हैं, किसी और की ओपिनियन मांग रहे हैं आप. वी कुड गो टू द सिनेमा नाउ, अब हम सिनेमा जा सकते हैं. यानी आप फारिग हो गए और आप चाहते हैं सिनेमा जाएं या कुछ और करें, तो आप किसी कहते हैं कि अब हम सिनेमा जा सकते हैं क्योंकि हम फारिग हो गए हैं शायद, या जो प्रोग्राम था वो ख़त्म हो गया है, जो फंक्शन था वो ख़त्म हो गया है. समझ आ रही कि नहीं? या हम मज़ीद बिज़ी नहीं रहे, या अब्बा घर पे नहीं है, भाई घर पे नहीं है, हैं तो हम जा सकते हैं. तो वी कुड गो टू सिनेमा नाउ, हम अब जा सकते हैं, यानी हम फारिग हो गए. या हम जा सकते हैं, बताएं आप, या नहीं न जाएं, टाइम नहीं है हमारे पास या है हमारे पास. तो ये पूरी सजेशन आप तलब करते हैं. हैबिट के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं. ये हैबिट की मीनिंग एक्सट्रैक्ट करते हैं किससे? वी यूज़, यहाँ पे मैंने यूज़ टू नहीं लिखा, ये असल में है वी यूज्ड टू लिखा है. वी यूज़, हम क्या इस्तेमाल करते हैं? यूज्ड टू. ये रेड पेन के लिए है, रेड पेन में इस्तेमाल नहीं किया, मैं बार लिख रहा था. वी यूज टू टॉक अबाउट पास्ट हैबिट्स विच आर नाउ फिनिश्ड. हम यूज टू इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? टू टॉक अबाउट, किस चीज़ को बताने के लिए? पास्ट हैबिट्स, जो माजी की हमारी वो होती हैं, आदतें होती हैं, उन आदत व अतवार को हम यूज टू से डिस्क्राइब करते हैं. विच आर नाउ फिनिश्ड, हाँ लेकिन जो ख़त्म हो चुकी हैं. याद रखें, जो आदत माजी में गुजर चुकी हैं लेकिन वो आदत, वो तौर तरीका अब ख़त्म हो चुका है, आपने उसको मुकम्मल कर दिया है, अब दोबारा नहीं करते, तो आप उसको यूज़ टू इस्तेमाल करते हैं. अब आप जैसे कहते हैं आई यूज़ टू गो टू स्कूल बाय बस, मैं बस पे जाया करता था स्कूल. समझ आ रही क्या नहीं आ रही? सो या आई यूज़ टू गो टू माई स्कूल ऑन फुट. सो या मैं पैदल जाया करता था, तो जाया करता था, तो मतलब वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है, वो हैबिट वो ख़त्म हो गई, वो अभी बाकी नहीं रही. अहमद यूज्ड टू प्ले फुटबॉल व्हेन ही वाज यंग. अहमद जब जवान था तो फुटबॉल खेला करता था. तो देखो ये यूज्ड टू यहाँ पे आ रहा है माजी के लिए. वी यूज विल एंड वुड टू टॉक अबाउट द एक्शंस व्हिच आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन. इट इज़ नोटेबल दैट वी यूज विल फॉर प्रेजेंट हैबिट्स व्हेयरएज वुड इज यूज्ड फॉर पास्ट हैबिट्स. हाँ अब देखिए, ये बहुत ज़रूरी है जी. हम अक्सर गलती करते हैं, तो हमारी इंग्लिश की ग्रामेटिकल मिस्टेक्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती हैं. बहुत से लोग माजी की बात दोहराते हैं कि माजी के अंदर मैंने क्या सोचा था, क्या किया था, तो हम वहाँ पर भी विल इस्तेमाल करते हैं, जो कि गलत होता है. वुड इस्तेमाल करना चाहिए. हाँ, विल को हमने किसके लिए? प्रेजेंट सेंस में या फ्यूचर सेंस में इस्तेमाल करना होता है. तो ये क्या कह रहा है कि हम विल और वुड इस्तेमाल करते हैं कब? टू टॉक अबाउट, क्या चीज़ बतलाने के लिए? द एक्शंस विच आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन. जिन एक्शंस को हम बार बार करते हैं, बार बार रिपीटेडली कर रहे हैं, हम वहाँ पर विल और वुड इस्तेमाल करते हैं. लेकिन ये याद रखना चाहिए कि हम विल को प्रेजेंट के आदतों में इस्तेमाल करते हैं और वेयर एज वुड इज़ यूज फॉर पास्ट हैबिट, जबकि वुड को हम पास्ट हैबिट के लिए इस्तेमाल करते हैं. यानी एक आदत रिपीटेडली हो रही है, बार बार एक चीज़ हम कर रहे हैं, तो बार बार जो एक आदत रिपीट होती है, तो प्रेजेंट के लिए हम विल इस्तेमाल करते हैं, और किसके लिए? माजी के लिए. अगर वो आदत जो है उसमें तकरार हो, उसमें रिपीटिशन हो, तो हम उसके लिए फिर वुड इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एवरी डे अली विल कम होम फ्रॉम स्कूल एंड ड्रिंक अप द फ्रेंड्स ही इज जस्ट बीन टॉकिंग टू.
इसका मतलब हर रोज़ अली आएगा स्कूल से और वो दोस्तों को कॉल मिलाना शुरू कर देगा बात करने के लिए। यानी फॉर एग्जांपल ये एक ऐसा जुमला है कि एक बहन है या एक भाई है, दूसरी बहन की दूसरी भाई की शिकायत लगा रहा है। अली है जो अली की शिकायत लगा रहा है, चलो भाई की शिकायत लगा रहा है। बहन या भाई घर में अली की शिकायत लगा रही है कि अभी तो वो स्कूल से आया नहीं होता, अभी तो वो स्कूल से आया नहीं होता, कि फ़ोन पे लग जाता है और कॉलें शुरू कर देता है। ये एक हैबिट है, समझ आ रही कि नहीं है? और ये रिपीटेडली है ना। तो वो दूसरी उसकी बहन जो है या भाई जो है अली की इस हैबिट के बारे में क्या कह रहा है, जो रिपीटेडली हो रही है, रोज़ाना हो रही है, और वो तशवीश है उसे तकलीफ दे रही है, उसे बुरी लग रही है। तो अम्मी को क्या कहता है, अब्बा को क्या कहता है, यानी एवरी डे अली विल कम होम फ्रॉम स्कूल एंड रिंग अप द फ्रेंड्स ही जस्ट बीन टॉकिंग टू। यानी हर रोज़ अली आएगा स्कूल से और क्या कर देगा, हैं, दोस्तों को कॉल मिलाना शुरू कर देगा बात करने के लिए। ये क्या तरीका है? यानी अली को मना नहीं किया जा रहा, मुझे मना किया जा रहा है, अली को कोई पाबंदी नहीं है क्योंकि वो रोज़ रोज़ बात करता है। तो यहाँ पे देखो विल इस्तेमाल हुआ है जो उसकी प्रेजेंट की रोज़ाना की आदत है। अब देखो दूसरी, देखो इन दोज डेज पीपल वुड मेक देयर ओन एंटरटेनमेंट। उन वक्तों में लोग अपनी किस्म की क्या है तफरीह किया करते थे, अपनी किस्म की एक तफरीह किया करते थे। वर्ड का तर्जुमा ऐसे करेंगे, समझा रही? ये नहीं करेंगे तर्जुमा ऐसा कि इन दोज डेज पीपल वुड मेक देयर ओन एंटरटेनमेंट। उन दोनों लोगों ने अपनी किस्म की तफरीह की, जो माजी में तर्जुमा है की वाला नहीं करेंगे। रिपीटेडली तकरार का मीनिंग, तकरार की मीनिंग करेंगे, समझ आ रही? रिपीटेशन वाली मीनिंग करेंगे। यानी उन दिनों लोग अपनी एक ख़ास किस्म की तफरीह किया करते थे, समझ आ रही है? क्यों बार बार रिपीट हो रहा है ना, वो तफरीह, वो एंटरटेनमेंट, उसमें रिपीटिशन है कि लोग एक किस्म की बस तफरीह किया करते थे, बार बार करते थे, उसमें रिपीटिशन है। तो आप वुड कहते हैं। द टीचर वुड गो टू द स्कूल अर्ली इन द मॉर्निंग, है, वी वुड टेक क्लासेस एवरी डे। ऐसे समझ आ रही कि नहीं? सो द टीचर वुड बीट अस एवरी डे, वी वुड गो आउट ऑफ आवर क्लास एवरी डे, वी वुड प्ले फुटबॉल एवरी डे, हैं, वी वुड नॉट लिसन टू आवर टीचर। हम नहीं सुना करते थे, नहीं करते थे, टीचर आया करता था, हम जाया करते थे। ये रिपीटिशन हो रही है वुड से। तो ये याद रखना है आपने कि प्रेजेंट के अंदर जो हो वो आपने विल से करनी है, और वुड आता है रिपीटिशन के लिए माजी की। प्रॉमिस आखिरी है जनाब, प्रॉमिस विल टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इंटेंशन इन प्रोमिसेस एंड थ्रेट्स। प्रॉमिस हो, चाहे वादा हो, चाहे धमकी हो, उसके अंदर आप विल इस्तेमाल करते हैं। विल की मीनिंग, विल से आप प्रॉमिस की मीनिंग भी निकाल सकते हैं, वादे की मीनिंग। लाइक आई विल बी केयरफुल विद द कार, आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ कि मैं गाड़ी के साथ मोहतात होऊंगा, मैं मोहतात रहूँगा, गाड़ी के साथ एहतियात करूँगा, मेरा वादा है। सो आई विल बी केयरफुल। सो स्टॉप मेकिंग दैट नॉइज़, बंद करो शोर, ये शोर बंद करो। और आई विल स्क्रीम, या तो मैं वरना चिल्लाऊँगा, स्क्रीम आना चिल्लाना, या मैं वरना चिल्लाऊंगा, तो बंद करो ये आवाज़ें निकालना या शोर करना, वरना मैं चिल्लाऊंगा। देखो विल यहाँ पे भी आया, विल वहाँ पे भी आया। तो ये हो गया आपका क्या, मॉडल ऑक्सिलरीज। ठीक है।